खाना बनाना सीखा और किसी ने वीडियोस बनाना सीखा और प्रियांक ने कंटेंट लिखना सीखा। तो अगर आप चैट जीपीटी से यूज कर रहे हो, आप ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो क्योंकि वो भी गलतियां करता है। एंड दैट रॉकेट साइन दैट चैट जीपीटी गिव्स एवरी टाइम। Absolutely. Someone is actually watching you on LinkedIn. It can be your hiring manager, it can be a future hiring manager, it can be your client, it can be your supervisor, or it can be a senior person who wants to network with you. Yeah. So that's why you have to keep alive on LinkedIn. Recruiters actually scan your profile. आपको बताएंगे नहीं कि कैसे स्कैन किया, जरूरी नहीं है कि अपने प्रोफाइल से स्कैन करें। They also have dummy account also. मैंने देखा है कि लोग जैसी कंपनी से निकलते हैं एक लंबा सा पोस्ट लिखेंगे, इसमें तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये ऐसे करते हैं, कोई चैट्स रिकॉर्ड करके उसमें डाल देंगे, स्क्रीनशॉट्स डाल देते हैं कंपनीज के। I think there is no need for all this. Platform is to motivate others and to give job to you, right? And Absolutely. Not to criticize anybody or any company or any HR. They are literally tagging the HRs and criticizing them. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Pitch and Hire. Today's episode is all about helping freshers kickstart their careers. I'm your host Vanya Goyal, and today we are joined by an exceptional leader in the world of product management, digital transformation, Priyank Ahuja. With 15 years of experience across industries like IT, telecom, edtech and real estate, Priyank has built impactful B2B and B2C products, driven strategic growth and managed cross-functional teams for successful product launches. He is a proven expert in identifying user needs, crafting innovative solutions and leveraging data for decision making. From consulting on marketing strategies to leading digital transformation projects across geographies, Priyank has done it all. Today, he'll share insider tips to help freshers kickstart their careers in our discussion from zero to hired. Welcome Priyank, we are thrilled to have you here. So hello Priyank, how are you? I'm fine, how are you? I'm good, thank you for being here finally. So guys, to tell you, हमें काफी मुश्किलों के साथ प्रियांक को यहाँ पर लाना पड़ा तो we had to chase him a lot, but then yes, I think this session is going to be one heck of a session because he is going to give you lots and lots of insights about LinkedIn. अगर आपको जानना है कैसे आपको अपना LinkedIn ग्रो करना है, कैसे आप टॉप वॉइस बैच पा सकते हैं, कैसे आपको अपने नेटवर्क बढ़ाना है, देन आई थिंक दिस इज वेयर यू विल हैव टू ट्यून इन टू द लास्ट बिकॉज Priyank is going to give you lots and lots and lots of insights. Okay, so moving forward right now, first question that I would want to ask you, I checked your LinkedIn profile and I think you are also you started this journey of yours for a few years back, right? Yeah. So how did you start this journey of yours, and you are doing another full-time job as well. So yeah. how are you managing both the things together along with maintaining a work-life balance for yourself? Sure. So thank you so much, Vanya, for asking this amazing question. So I started writing content on LinkedIn in April 2021, especially COVID. During the COVID time. Why this is I consider this as a golden period because a lot of professionals like me actually caught themselves in the home, and most important is खाना बनाना सीखा. Yeah. और किसी ने वीडियोस बनाना सीखा और प्रियांक ने कंटेंट लिखना सीखा. बट उसके पीछे भी एक कहानी है कि व्हाई आई सडनली स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट. राइट, व्हाई दिस? प्रीवियसली आई वॉज अ रीडर. मैं देखता रहता था कि लोग कंटेंट डाल रहे हैं, मैं पढ़ता रहता था, बट मेरा कभी मोटिवेशन नहीं आया. बट ऑल ऑफ ए सडन वंस हैपेंस इन May 2020 ऑनवर्ड, पीपल आर एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग ऑन लिंक्डइन कि मेरा जॉब चला गया, मेरा इंटर्नशिप रिवोक हो गया, मेरा प्लेसमेंट था, मैंने MBA पे इतना लाख खर्च कर दिया, मैंने BTech कर ली और मेरा इंटर्नशिप रिवोक हो गया, व्हाट शुड आई डू? एंड पीपल आर पुटिंग अप सो मेनी पोस्ट और उसमें ये बोलते थे कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, रेफर कर दो, बट दे नोबडी इज एक्चुअली हेल्पिंग देम व्हाट दे शुड डू इन दिस पर्टिकुलर क्राइसिस ड्यूरेशन. सो दैट्स एक्चुअली मोटिवेटेड मी सो दैट आई कैन गिव द आंसर कि अगर आपके पास ये अनसर्टेनिटी आई है, ये लाइफ में पहली बार नहीं आई है, ये हर बार आएगी. ऐसा नहीं है कि कोविड एक बार आया, हो सकता है ये 2-3 साल कोविड ले जाए, या फिर हो सकता है कोविड जैसी कोई और बीमारी फ्यूचर में आ जाए, बट दे शुड डू. देन आई स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, started with providing the tips what they should do in this time. Correct. And how they can leverage this lockdown period. And that how actually I put in my first content. वो ज्यादा अच्छा नहीं गया था, हार्डली 6-7 लाइक आए थे, बट दूसरा कंटेंट जब मैंने डाला था कि हाउ टू अप्रोच समवन फॉर रेफरल, वो एक्चुअली एकदम से वायरल हो गया. आई गॉट अराउंड आई रिमेम्बर इट इज अराउंड 1 लाख impressions I got. Wow. And that actually motivated me to start writing consistently on LinkedIn. पहले मैंने हफ्ते में 5 दिन कंटेंट डालना शुरू किया, फिर मैंने डबल कर दिया, 1 दिन में 2, फिर धीरे धीरे 6 महीने के बाद मैंने 1 दिन में 3 डालना शुरू कर दिया. और एक टाइम तो ऐसा था, पीक था, जब मैंने 1 दिन में 4 डाला था. And this was before ChatGPT came in picture. You were writing everything yourself. Yeah. So on that note, please tell us
how important it is that we write original content and don't copy paste from ChatGPT. It will help them to understand. See, LinkedIn actually easily detect whether you write a content from ChatGPT or any other AI tool, not only ChatGPT. There are tons of AI tools are there. So LinkedIn को पता चल जाता है कि आपने ChatGPT से लिखा है या खुद से लिखा है. वो कैसे? क्योंकि आप उसमें ह्यूमन टच नहीं दे पाओगे. एंड लिंक्डइन एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क्स ऑन द ह्यूमन टच. जैसे आई, मी, माई सेल्फ कीवर्ड है, वो चैट जीपीटी खुद से नहीं बना सकता. सेकंड थिंग, उसकी जो आई कैची हुक लाइंस है वो भी इजीली वो डिटेक्ट कर लेता है. तो अगर आप चैट जीपीटी से यूज कर रहे हो, आप ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो भी गलतियां करता है. एंड दैट रॉकेट साइन दैट चैट जीपीटी गिव्स एवरी टाइम. एब्सोल्युटली. वो उसका आप ये समझ लो कि उसके आंसर्स उसके नेचुरल नहीं होते, वो कॉपी पेस्टेड आंसर होते हैं, और वो हर बार प्रॉम्प्ट आपको डालोगे तो भी सेम आंसर ही देगा. तो इट्स बेटर यू शुड राइट द कंटेंट. और अगर आप ले रहे हो हेल्प, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू ऐड ह्यूमन टच, देन ओनली इट विल वर्क. यू विल हैव टू ऐड योर ओन थॉट्स बेसिकली, एंड देन इफ यू आर यूजिंग taking a little bit of help to beautify it, then I think ChatGPT works in right way. But then if you are completely relying on ChatGPT, that is not a right approach. That doesn't work. Yeah. Right. So apart from that, tell us about LinkedIn, right? Why it is important and beneficial for the job seekers as well as the other industry members. Why should they keep their LinkedIn live and active, and how frequently should they post? What are the benefits? Yeah. इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. नेगेटिव इसके पॉइंटर्स बहुत हैं और पॉजिटिव भी हैं. पहले मैं आपको पॉजिटिव बताता, फिर मैं नेगेटिव बताता हूँ, और आप उसको कैसे बचा सकते हो अपने प्रोफाइल को. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द पॉजिटिव वन. पॉजिटिव ये है दैट समवन इज एक्चुअली वाचिंग यू ऑन लिंक्डइन. It can be your hiring manager, it can be your future hiring manager, it can be your client, it can be your supervisor, or it can be a senior person who wants to network with you. Yeah. So that's why you have to keep alive on LinkedIn. But alive का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही LinkedIn को दे दो. अगर आपने दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा भी दे दे, that is sufficient enough. Now when you open the LinkedIn, what you can do? You can utilize your time by first of all do the intensive research. Yeah. लोग वो जनरली रिसर्च स्किप कर देते हैं, वो रैंडमली कुछ भी कंटेंट खोल लेते हैं, एंड दे स्टार्ट एंगेजिंग ऑन दैट. वो आपको नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द रिसर्च. रिसर्च इन द सेंस, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर नीश, कि आपका नीश क्या है, आपको क्या चीज पसंद है, और आपको क्या चीज आती है, और क्या चीज में आप आगे ग्रो करना चाहते हो. सेकेंड थिंग, उस पर्टिकुलर नीश के अंदर आपकी इंडस्ट्री, टारगेट इंडस्ट्री कौन सी है, टारगेट कंपनीज कौन सी हैं, और उसके अंदर टारगेट रोल कौन से हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, अब डिजिटल मार्केटिंग के रोल हर इंडस्ट्री के अंदर है, हर कंपनी के अंदर है. कौन सी इंडस्ट्री, सपोज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी, इंटरनेशनल ब्रांड्स या नेशनल ब्रांड, और उसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो. तो पहले अपना रिसर्च करो. Once you identify your industry, company and role, then search for the industry leaders or professionals or influencers who are active on LinkedIn. Wow. And once you identify that, start engaging with their content through meaningful comment. Okay. वो उनके नोटिस में जाएगा, and once you offer the value, then ultimately they will, you can say, come to your platform. They will start engaging with you. Right. They can also replying to your messages. True. And that's how you can grab the attention in their eyes. और अल्टीमेटली वो आपको जॉब भी ऑफर कर सकते हैं, आपको इंटर्नशिप भी ऑफर कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आपको अगर अभी चाहिए, देन अल्टीमेटली इन फ्यूचर दे वर द बेस्ट वन, फर्स्ट वन टू गेट हायर्ड यू. एक तो ये फायदा है लिंक्डइन का. दूसरा, लिंक्डइन विल ऑल्सो एक्चुअली हेल्प यू टू टेल यू व्हाट स्किल्स यू हैव टू डेवलप. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना है, कौन से टूल आप सीख सकते हो. दे ऑल्सो हैव ए plenty of resources in terms of e-learning platform. आप कोई सा भी कोर्स आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें पूरा लर्निंग पाथ आपके लिए अवेलेबल है, और आप 5 से 10 घंटे का कोर्स अटेंड करके वो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी, एंड इट विल रिफ्लेक्ट योर क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी. तो आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक्डइन भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. यू कैन बिल्ड योर स्किल्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. यूडेमी के पैसे लगा रहे हो, कोर्सेरा के पैसे लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है. यू कैन गेट फ्री स्किल बिल्डिंग थ्रू द लिंक्डइन ओनली. थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप खुद कंटेंट उसके ऊपर डालते हो या एंगेज करते हो, आपका खुद का भी एक पर्सनल ब्रांड बिल्डअप हो जाता है. That's true. पर्सनल ब्रांड लोगों को ज्यादातर पता नहीं है क्या, ये एक बज़वर्ड है आज की डेट में. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, सपोज आपको किसी ने हायर कर लिया, सपोज टीम लीड के लिए या मैनेजर के लिए, बट वो आपकी डेजिग्नेशन कंपनी तक सीमित है या आपके घर वालों तक सीमित है कि आप इस कंपनी में XYZ रोल हैंडल कर रहे हो. उसके बाहर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है.
पर्सनल ब्रांड होता है कि आपको किसी कंपनी के लिए लोग ना जाने, आपको आपके नाम से जाने, आपको आपकी स्किल्स और आपकी काबिलियत के हिसाब से जाने, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अपार्ट फ्रॉम योर कंपनी, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जॉब, what people remember about you. Right. That's how you have to build your personal You can brand. create your own identity as well over Yeah, LinkedIn. absolutely. तो पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर्स में मिल सकती हैं. तो Right. जॉब हो गया, आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, दैट विल एक्चुअली एड वैल्यू. Right. ये है पॉजिटिव. नाउ आई कम टू द नेगेटिव, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. नेगेटिव बहुत सारे हैं. फर्स्ट इज, अगर आप एंगेज करते हो बट वो एंगेज एग्रेसिव है, या फिर अगर आप नेगेटिव थॉट शेयर करते हो, या क्रिटिसिज्म या डिबेट या आर्ग्यूमेंट करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करते हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, देन अल्टीमेटली इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल. Right. इट विल गिव यू नेगेटिव स्कोर. So if you will see a few profiles would be there जो रिपीटेडली सबकी पोस्ट पे क्रिटिसिज्म वाले कमेंट ही डाल रहे हैं. एब्सोल्युटली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं. अननेसेसरी कमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, हाँ. आप सेल कर रहे हो लिंक्डइन पे कि, या फिर सपोज एक आपने फ्री वेबिनार कंडक्ट किया है और आप फ्री वेबिनार के थ्रू वो कोर्स सेल करना चाहते हो, हर कोई कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट उनके प्रोडक्ट में आप इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हो कि लोग वो प्रोडक्ट ना अवेल करें, या उनके कोई कोर्स में कोई इंटरेस्ट ना शोकेस करें, अल्टीमेटली इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट. तो वो चीज आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव स्कोर ऐड करेगा. सेकंड थिंग इज, रिक्रूटर्स एक्चुअली स्कैन योर प्रोफाइल. आपको बताएंगे नहीं कि कैसे स्कैन किया, जरूरी नहीं है कि अपने प्रोफाइल से स्कैन करें, दे ऑल्सो हैव डमी अकाउंट ऑल्सो. तो वो आपका प्रोफाइल जब स्कैन करेंगे, वो देखेंगे कि इसका तो नेगेटिव एटीट्यूड है आपके प्रोफाइल के थ्रू, देन अल्टीमेटली दे विल डिक्लाइन योर एप्लीकेशन. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किस वजह से नहीं हुआ. या फिर सपोज आप वहां पे मोटिवेशन की बात कर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, और वो आपको हायर कर रहे हैं, सपोज टेक्निकल रोल लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर और डिजाइनर, वो आपके पर्सोना के साथ मैच ही नहीं होता, अल्टीमेटली दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एंड देन यू विल क्रिप अबाउट योर रिजेक्शन ओवर लिंक्डइन ओनली. या ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है जो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. दूसरा एक और नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप सपोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो एक कंपनी के अंदर, और आप सपोज किसी के पोस्ट पे जाके एंगेज करने लगते हो, तो आपके जो सुपरवाइजर है या टीम लीडर, वो सोचेंगे कि सारा दिन ये बंदा या बंदी लिंक्डइन पे बैठी है और ये कुछ जॉब पे काम नहीं कर रहा. दैट दे आर ऑल्सो स्टैकिंग योर प्रोफाइल ऑल्सो. या फिर सपोज किसी ने कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट डाला, आप उसमें अपने व्यूज दे रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले एक ईवाई का केस हुआ था कि वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड, तो वो उसमें अगर आपने कुछ अपने व्यूज दे दिए कि मेरी कंपनी में भी ऐसा होता है, मेरा बॉस भी मेरे से 18 घंटे काम करवाता है, इफ सपोज योर पोस्ट विल गेट नोटिस बाय योर रिक्रूटर एंड यू आर एक्सप्रेसिंग हेटेड कमेंट्स अबाउट देम, योर वर्क लाइफ कल्चर, अल्टीमेटली फिर आपका अप्रेजल भी रुक जाएगा, आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा, हो सकता है वो आपको पीआईपी में भी डाल दे. तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है. तो सोच समझ के डालो कि आप क्या लिख रहे हो. इट इज लाइक, बिकॉज जो भी आपने लिंक्डइन पे लिख दिया वो आप उसको इरेज नहीं कर सकते. वो एक रिकॉर्ड हो गया, और वो रिकॉर्ड किसी भी तरह से बम फुट के कभी भी फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो गाइज, इन शॉर्ट, प्रिविलेज इट वाइजली. ऐसा नहीं है कि आपको मिला हुआ है प्लेटफॉर्म तो उठाओ और कुछ भी डाल दो, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मैंने देखा है कि लोग जैसी कंपनी से निकलते हैं एक लंबा सा पोस्ट लिखेंगे, इसमें तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये ऐसे करते हैं, कोई चैट्स रिकॉर्ड करके उसमें डाल देंगे, स्क्रीनशॉट्स डाल देते हैं कंपनीज के कि मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बात करते हैं, इनका वर्क कल्चर बहुत खराब है, ये लोग ऐसे करते हैं. तो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर ऑल दिस, राइट? बिकॉज ये platform is to motivate others and to give job to you, right? And absolutely. Then not to criticize anybody or any company or any HR. They are literally tagging the HRs and criticizing them कि ये बहुत बेकार है, मेरा तो FNF ही रुक गया है, मेरा FNF नहीं दे रहे, मेरा पे स्लिप नहीं दे रहे. कोई बहुत ही genuine concern है कि चलो एक्चुअली आपका 1 साल से नहीं मिल रहा है, तो देन यू आर रेजिंग इट, देन इट्स फाइन. बट देन unnecessary criticism, I think that is also something we should not encourage. Absolutely. Right? So yeah, I think thank you. It was a good insight. Pros, cons, something, guys. If you're on LinkedIn, use it wisely. So now moving forward, let's talk about the importance of bio over LinkedIn and how should we make sure that our bio is catchy and people are actually noticing us. Okay, पहले मैं फ्रेशर की बात करता हूँ क्योंकि फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. Yeah, step by step. Suppose you apply for any internship. Why recruiter should hire you? Right. Recruiter will hire you if you have the skills, or if you have the exposure, or if you have the credibility through courses or authentic certifications, or you exhibit leadership qualities. True.
तो वो सारी चीज आपको लिंक्डइन के बायो में डालनी है. एंड लिंक्डइन ऑल्सो हैव सो मेनी यू कैन से कंपोनेंट्स इन योर प्रोफाइल बिल्डिंग. जैसे आप देखोगे सबसे पहले हेडलाइन आया, फिर अबाउट मी आया, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आया, स्किल सेट आया, इवन टेस्टिमोनियल रिकमेंडेशंस आल्सो देयर. और आज के टाइम में इतना स्किल्ड फ्रेशर अवेलेबल है. Yeah. मतलब आप हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि एक फ्रेशर आ रहा है एंड वो ऑलरेडी टूल्स बिल्ड कर रहे हैं, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोग कितने एनर्जेटिक है, वो पहले ही लेकर बैठे हैं कि यार कॉलेज में ही वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के अपने यूज करके अपना बना के दिखा रहे हैं. एंड आई थिंक उनके पास जो एनर्जी है वो आपको एक्सपीरियंस में नहीं मिलेगा. तो I think this is something that he mentioned correctly, eagerness to learn, your leadership qualities, how would you be an asset for the organization, it is very important. So if you can showcase this in your profile, then I think recruiter would pick you over anybody. Absolutely. और आपका ध्यान होना चाहिए कि उसको एक्वायर कैसे करना है. Yeah. वो उसके एक्वायर करने के कई तरीके हैं. जैसे in every college or every institution there are so tons of opportunities. जैसे you can participate in hackathon, you can participate in case study competitions. लोग उसमें अप्लाई नहीं करते, वो ये फियर ऑफ रिजेक्शंस के कारण वो अप्लाई नहीं करते. मेरे दोस्त हंसेंगे कि मैंने अप्लाई कर दिया, मैं जीता नहीं, या फिर मैं टॉप 10 में भी नहीं आ पाया. बट एक्चुअली इट विल ऐड वैल्यू. वो वैल्यू है कैसे ऐड हो रहा है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हो हैकाथॉन्स और केस स्टडी कॉम्पिटिशंस के अंदर, यू विल बी एबल टू डेवलप मल्टीपल स्किल्स. फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट, सेकंड इज योर क्रिएटिव थिंकिंग, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू टेक डिसीजन एज ए टीम इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. क्योंकि आपको कोई हाइपोथेटिकल केस दे दिया, हाउ यू सॉल्व एज ए टीम इन जस्ट 1 hour और 24 hours, एंड यू हैव टू प्रेजेंट द सोल्यूशन. वो एक तरीके का वार रूम है where you have to work as a team and ultimately you will be able to showcase your solution. और इससे बेस्ट जब आप उसका प्रेजेंट करते हो, then presentation और public speaking skills also come into the picture. तो वो भी एक वैल्यू ऐड करता है, बट उस लोग उसको अवॉइड करते हैं, वो नहीं लिखते. तो आप जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू लर्न सो मेनी थिंग्स. तो वो आप उसको हमेशा पार्टिसिपेट करो. यू विल ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक, जैसे मैं हमेशा पोस्ट डालता हूँ एक्सेल से रिलेटेड. इवन यू कैन ऑल्सो लर्न टूल्स लाइक आर, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबल्यू, जो डेटा विजुअलाइजेशन में काम आता है. आप किसी भी रोल पे इजिली जा सकते हो. एंड फाइनली वंस यू highlight these kind of things, you have to showcase the impact. क्या आपने ये टूल सीखा, इससे आपको क्या फायदा हुआ, या आपने ये कोर्स किया, इसको आपने कहाँ यूज किया. You have to add numbers. Ultimately it will add credibility in your profile and recruiters get notice you and they will definitely call you for interview. See, LinkedIn देख करके या CV देख करके आपको कोई जॉब नहीं देने वाला. ये आपका सिर्फ एक टूल है जो रिक्रूटर की टेबल तक आपको पहुंचा देगा. आपको जॉब तभी मिलेगा जब आप इंटरव्यू में बोलोगे, आप प्रेजेंट करोगे. अल्टीमेटली एड वैल्यू टू योर स्किल सेट एज वेल. एंड अगर आपने वो एक्चुअली में किया होगा और आपके पास वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, you will be able to showcase it during the interview and you'll be able to crack the interviews better. Absolutely. In bio, one most important section is your skill set. Yeah. वो स्किल सेट आप 2 तरीके से एक्वायर कर सकते हो. या तो इन यू कैन से केस स्टडी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कोर्सेज कर लिया, या जो आपने इलेक्टिव कोर्सेज किए हैं अपने यू कैन से रेगुलर स्टडीज में, वहां से एक्वायर कर सकते हो. नहीं तो आप लिंक्डइन ई लर्निंग पे जाकर के जो कोर्सेज कंप्लीट करोगे, उसकी क्विज पास करोगे, ऑटोमेटिक 2 स्किल सेट विल आल्सो गेट एडेड. बट उसकी ऑर्डरिंग ठीक होनी चाहिए. लिंक्डइन में आपकी 50 स्किल्स ऐड हो सकती हैं, बट वो 50 हर एक को रिक्रूटर को नहीं दिखेंगी, उसको सिर्फ टॉप 3 दिखेंगे. तो आपको उसका ऑर्डर ठीक से ऐड करना पड़ेगा. तो वो ऑर्डर आप मैन्युअली आप सेलेक्ट करोगे, और वो 3 जो टॉप स्किल्स हैं वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन होनी चाहिए. तो वो ऑर्डरिंग का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर सी मोर पे क्लिक नहीं करता. एंड फाइनली यू शुड गेट रिकमेंडेशंस ऑन योर प्रोफाइल. वो भी कोई नहीं लेता रिकमेंडेशंस. तो रिकमेंडेशंस आप अपने दोस्तों से मत लेना, रिश्तेदारों से मत लेना. लोग एक दूसरे को दे दिया, चलो मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे दे दो. इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक. वो साफ दिख जाएगा कि गिवन में कितना है और रिसीव में कितना. अगर वो सेम बंदे का, वो नलिफाई हो जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू वेयर एवर यू वर्क, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो आपका हायरिंग मैनेजर हो जिसके साथ आपने इंटर्नशिप करी है, या जिसके साथ आप जॉब करने वाले हैं, एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल जो रैंक है वो हाई हो. एंड अल्टीमेटली दिस विल ऐड क्रेडिबिलिटी इन योर प्रोफाइल. बट उसमें वो चीज लिखी हो, खाली एक आपने सिर्फ 1 या 2 लाइन ना लिखी है, वो पूरा लिखें कि आप उसको कैसे जानते हो, इसने क्या काम किया और उसका क्या इम्पैक्ट था. दैट एक्चुअली मेक इट सो मच इम्पैक्टफुल. ये ओनली सिर्फ जॉब में काम नहीं आएगा. कल को आप हायर स्टडी करते हो, एमबीए के लिए अप्लाई करते हो, they can also see your you can say application through LinkedIn as well. क्योंकि आज की डेट में LinkedIn एक डिजिटल रिज्यूमे है.
कोई भी जाएगा एक्सपोर्ट करेगा, वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, एंड दे कैन स्कैन दोस पर्टिकुलर कीवर्ड. So ये तो हुई फ्रेशर्स की बात. Now let's talk about the industry leaders who are actually willing to do personal branding. So उनको कैसे अपना बायो सेलेक्ट करना चाहिए? First of all, they have to first understand that it should not come under conflict of interest. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे रोल पे हो जिसमें आप कंपनी के खुद प्रोडक्ट सेल करते हो. लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज आप ई लर्निंग के प्रोडक्ट सेल करते हो और आप खुद का भी एक ई लर्निंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो एक कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा. तो मेक श्योर इट शुड नॉट बी हैविंग द सेम टारगेट ऑडियंस, इट शुड नॉट मैच विद द सेम customers as well as client, and it should not create any, you can say, interference with respect to the work you are doing. Then ultimately you should do your personal branding. तो पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी टारगेट ऑडियंस और आपके वर्किंग कैरियर जो है उसकी टारगेट ऑडियंस के साथ मैच नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर देन यू शुड बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग. अब वो कैसे करोगे? यू शुड डू योर ओन रिसर्च कि आप पर्सनल ब्रांडिंग किसके लिए कर रहे हो, आप क्या सेल करना चाहते हो, अपने आप को सेल करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को सेल करना चाहते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू एड अप, एंड यू हैव टू शोकेस इन द फीचर्ड सेक्शन. You have to showcase your credibility by putting the meaningful content at least once in every day or 5 times a week. That is sufficient. And also, you should engage with the same industry professionals in your target niche on daily basis. Then ultimately, slowly, the personal branding will be built up. Okay. And finally, once you do this, you have to add as many examples as possible through headline, through tagline, as well as in the featured section. Got it. So I think people out there who are willing to do personal branding, including me, I will also take these tips and optimize my profile accordingly. Yeah. So it is very important that you optimize your LinkedIn profile accordingly so that you come in the searches of the people. Absolutely. Right. It is very important. So if you are actually you are actively hiring for any job per se, you are in HR, so you can definitely mention hiring for so and so position, and it will, the keywords will start ranking. Like for example, I am a job seeker. I am looking for the full stack positions, and if I'll write in the LinkedIn search that looking for full stack position, then it will show me the recruiters, right? So वो आपको शो कैसे करेगा? हाँ. शो करने के कई तरीके हैं. अगर आप सपोज किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो कीवर्ड आपकी टैगलाइन में भी हो, okay, आपकी अबाउट मी सेक्शन में भी हो, okay, आपके सर्टिफिकेशन के साथ भी कहीं मैच करता हो, आपके टेस्टिमोनियल के साथ भी कहीं मैच करता हो, और एनी ऑफ द बेस्ट वर्क इन योर फीचर्ड सेक्शन, या फिर आपका वेबसाइट, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर आपका कोई सोशल मीडिया प्रूफ, वहां से कीवर्ड वैलिडेट हो जाता है. और जितना ज्यादा स्कोर होगा प्रोफाइल मैचिंग का, अल्टीमेटली यू विल रैंक हाई. राइट. सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, योर प्रोफाइल शुड बी 100% कंप्लीट. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कोई कॉलम खाली छोड़ दिया. यू विल हैव टू मेक श्योर एंड अगेन स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप फिर सब चीजों की बात कर रहे हो. फिर यू नीड टू स्टिक टू द नीश, राइट? सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी नीश से ही स्टिक रहना चाहिए, और ये नहीं कि कभी ये डाल रहे हैं कभी वो डाल रहे हैं. अगर आप जॉब ले रहे हो, इंटर्नशिप के लिए सर्च करो, या जॉब बदलना चाह रहे हो, देन यू हैव टू स्टिक टू योर नीश. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको जॉब नहीं ढूंढनी, जो मर्जी डालोगे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट इफ यू आर टारगेटिंग सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो वो 3 महीने में कुछ ऊटपटांग चीजें मत डालो. यू शुड स्टिक टू योर नीश. और अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को कैसे रैंक करना है, कैसे स्कोर इंप्रूव करना है, एक बेस्ट तरीका बताता हूँ. आप लिंक्डइन पे कुछ भी सर्च करो. सपोज आप एक जॉब सर्च कर रहे हो, यू कैन से सॉफ्टवेयर डेवलपर, टाइप करो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और सर्च बार में देखो कि टॉप 10 में ये लोग क्यों आए. हर 10 लोगों की जो टॉप 10 में आए, एक एक का प्रोफाइल स्कैन करो, डिटेल में स्कैन करो, हेडलाइन में क्या लिखा है, एजुकेशन में क्या लिखा है, अबाउट में क्या लिखा है, रिकमेंडेशन में क्या लिखा है, और उनको कंपेयर करो. उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा. वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे और वो अपने प्रोफाइल में आप ऐड कर सकते हो. अगर आपके पास वैलिड सोशल मीडिया प्रूफ्स हैं या क्रेडेंशियल्स हैं, डेफिनेटली यू शुड ऐड अप. बट कोई चीज फेक मत लिखो, क्योंकि रिक्रूटर्स आर वेरी स्मार्ट, दे कैन इजीली जज. ट्रू. So how to, on that note, how to identify that it's a fake profile? ये बहुत चल रहा है आजकल लिंक्डइन पे, बहुत सारी फेक और डमी प्रोफाइल्स बन रही हैं. So how to identify that? पहला तो ये कि कनेक्शंस का काउंट उसका बहुत कम होगा. देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कनेक्शंस एंड सेकंड वन इज फॉलोवर. तो जो उसका जो कनेक्शन का काउंट है, जब लिंक्डइन आपको दिखाता है 500 प्लस कनेक्शंस, वो एक ऑथेंटिसिटी आपको दिख जाएगी. अगर उसके 500 से ही नीचे हैं, तो इसका मतलब या तो प्रोफाइल उसने अभी बनाया है, या बना लिया, ये लेकिन वो डमी प्रोफाइल है, किसी कारण से पहले पास से बनाया था बट वो एक्टिव नहीं है. तो उसके कनेक्शन एटलीस्ट 500 तो हो.
कोई भी इतना गया गुजरा नहीं है कि उसके 500 भी कनेक्शंस ना हो। 500 मतलब स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, जॉब से रिलेटेड है, तो उसकी फैमिली के एटलीस्ट 500 तो होंगे। 500 कुछ भी नहीं आज की डेट में। तो कनेक्शंस 500 का काउंट मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, चेक देयर एक्टिविटी। लिंक्डइन के अंदर आप किसी की भी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो, वो क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है या कुछ भी नहीं है, तो वो उससे भी आपको थोड़ा बहुत इंसाइट आपको मिल जाएगा। अगर वो एक्टिव ही नहीं है देन अल्टीमेटली इट्स अ डमी प्रोफाइल। एंड थर्ड इज सेम कमेंट हर एक के प्रोफाइल पे डिट्टो कॉपी एज इट इज पोस्ट हो रहा है, इसका मतलब वो भी एक डमी प्रोफाइल है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप उसका देखोगे एक सिंक्रोनाइजेशन दिखेगा। टैगलाइन भी आपको या तो एआई जनरेटेड होगा या कुछ भी नहीं होगा, स्किल्स में भी कुछ नहीं होगा, प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगा या फिर वो पार्शली फिल्ड अप होगा, उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। और लास्टली, फोटोग्राफी नहीं होगा तो वो एक क्लियर कट साइन है कि आपका ये प्रोफाइल फेक है। सो वो होता है ना कि भेड़ चाल में चलने वाली बात है। अभी लिंक्डइन ने भी अपना वीडियो स्टार्ट किया है न्यू, रील सेक्शन इन लिंक्डइन शॉर्ट, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली डिलीटिंग प्रोफाइल एवरी डे। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि हर वीक में, हर फ्राइडे की रात को आपके 100-200 फॉलोवर कम हो जाते हैं, वो डेड अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं। और टिल डेट दे हैव एटलीस्ट डिलीटेड अराउंड मिलियंस ऑफ यू कैन से डेड अकाउंट। तो ये क्लीनिंग एक्टिविटी उनकी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। हर वीक पे 1 या 2 बार वो करते रहते हैं। That's why I keep checking that I had these many followers earlier and now why are they reducing instead of increasing? So this they are not unfollowing you, they are actually deactivating from the back end. Okay. Yeah. All right. और आप अगर आप नोटिस करोगे आपका कम हो रहा है, आप अपने साथ वाले अकाउंट का भी देख सकते हो, रिफ्रेश करके देखो, अगर उनका भी कम हो रहा है इसका मतलब क्लीनिंग एक्टिविटी चल रही है। Okay, got it. So प्रियांक, अभी रिसेंटली मैंने आपका एक क्लास पोस्ट देखा था रिगार्डिंग द नोटिस पीरियड। सो लेट्स टॉक अबाउट नोटिस पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉय। नोटिस पीरियड के अलग अलग मीनिंग है, बट मैंने वो एक रियल डेफिनेशन शेयर की थी दैट नोटिस पीरियड इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन एम्प्लॉयज आर एक्चुअली स्टार्ट नोटिसिंग योर अकम्प्लिशमेंट, योर अचीवमेंट्स एज वेल एज द इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग। तो उस डेट से आपका स्टार्ट होता है नोटिस होना। क्योंकि नॉर्मली पहले होता ना घर की मुर्गी दाल बराबर के हमारे यहाँ पे कंपनी में जॉब कर रहा है या कर रही है, तो ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसको कुछ भी हाइक दे दो और कुछ भी मतलब वेरिएबल पे दे दो, अल्टीमेटली द एम्प्लॉय नीड्स टू वर्क देयर, वो कहीं जाने वाला नहीं है। बट जब उसने पेपर डाल दिए तब सडनली उनकी आंख खुलती है कि अब तो ये तो जाने वाला है, अब तो किसी तरह से उसको रोकना पड़ेगा। एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर टैलेंट कि अभी हमने ये किया, हमने वो किया, आप ये अच्छा काम करो। ऑल ऑफ ए सडन उनके अच्छी बातें दिमाग में आने लग जाती है। तो वो एक उस तरीके से एक ह्यूमरस पोस्ट मैंने डाला था। तो वो एक नोटिस पीरियड का एक दूसरा एंगल है, जब एम्प्लॉइज एकदम से जाग जाते हैं, एम्प्लॉयज सडनली वेक अप। बट एक्चुअली नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर्स के लिए एक वैल्यूएबल पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई नई जॉब मिल गई तो एक पीरियड होता है जिसमें आपका स्मूथ हैंडओवर हो जाए, उस वैकेंसी को फिलअप हो जाए। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में दे शुड इमीडिएटली हायर द रिप्लेसमेंट, एंड इफ द रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल देन दे ट्राई टू रिटेन दैट पर्टिकुलर टैलेंट। तो वो इस पीरियड को यूज करती है। अब आपने रिजाइन कर दिया, सपोज आपने बोल दिया कि मैंने आज मेरा नोटिस पीरियड, आज मेरा जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, 5 दिन के बाद मैं काम पे नहीं आ रही। अब 5 दिन के अंदर इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि उनको इंटरनल बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसका हैंड ओवर ले सके, वो 5 दिन में पॉसिबल नहीं है। और नया बंदा भी हायर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो वहां पे नोटिस पीरियड देगा, फिर वो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करेगा, फिर ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज होंगे, फिर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होगा, काम को समझोगे, क्लाइंट के प्रोसेसेस को एनालाइज करोगे। वो सोचते ऑनबोर्डिंग से लेकर के 3 महीना उसको अडेप्ट होने में लग जाता है। तो जो रियल प्रोडक्टिविटी है रिप्लेसमेंट की, वो 3 महीने के बाद मिलेगी। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अप्लाई 3 मंथ्स ऑफ नोटिस पीरियड। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, बट एम्प्लॉयज उसका दूसरा फायदा उठाते हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे पोस्ट भी देखे होंगे कि एम्प्लॉयज आर जनरली फील हैप्पी व्हेन दे पुट द नोटिस पीरियड, क्योंकि अब तो मुझे काम करना नहीं है, एकदम से वो ग्लो करने लग जाते हैं और मजे में घूमते फिरते हैं और अनसुना कर देते हैं कोई भी मतलब नया टास्क मिलता है। अब तो नोटिस पीरियड पे है, अब तो मैं कुछ करना, अब तो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मुझे कुछ काम करना नहीं है। वो भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है, वो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको उस कंपनी में दोबारा आना पड़े, देन इट विल गिव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। यू शुड ऑलवेज एंड ऑन अ गुड नोट। एब्सोल्युटली। और नोटिस पीरियड में ऊट पटांग कंटेंट आप लिंक्डइन पे मत डालो।
अगर आप ये डालोगे तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको हायर की है दे आर ऑल्सो वाचिंग, वो ये सोचेंगे कि अभी ये नोटिस पीरियड में है, अभी तो हमने हायर नहीं किया, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना नेगेटिव बोल रहा है, कल को अगर ये हमने हायर कर लिया और कल को किसी और कंपनी ने अच्छा पैकेज दिया, वो भी हमारे साथ ऐसे करेगा, देन व्हाई वी शुड हायर दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो रहे हो। तो नोटिस पीरियड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू पुट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सुपरवाइजर, योर वर्क, योर क्लाइंट एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये आपका डिजिटल प्रूफ है, ये आपका एलिमिनेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की रैंडम कॉपी में सेव हो जाएगा और कभी भी आपके अगेंस्ट में ये एविडेंस क्रिएट करेगा। तो डोंट put any negative things, don't put any silly or stupid things when you are serving the notice period। अगर आप कर रहे हो अच्छी बात, आपको जॉब मिला, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट शोकेस मत करो। अच्छा, एक बार जोमेटो फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक बात बोली थी दैट दे डू नॉट हायर एनी पर्सन हु इज सर्विंग नोटिस पीरियड और एन इमीडिएट जॉइनर, और ये नोशन मार्केट में है कि जो लोग इमीडिएट जॉइनर्स होते हैं दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट स्किलफुल रिसोर्सेज। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, कुछ लोग उसका एक एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो अपना शॉर्ट टर्म गेन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप खुश नहीं हो किसी भी कारण से, सैलरी का प्रॉब्लम है या फिर विजिबिलिटी नहीं है, आपने दूसरी जॉब ढूंढी और आपको मिल भी गई। व्हेन यू गेट द जॉब, एम्प्लॉयर आपके लिए वेट कर रहा है, यू शुड बी लॉयल टू दैट। अगर वो वेट कर रहा है then you should join that company। बट 3 महीना आपके पास टाइम, 3 महीने के अंदर वो लोग ये सोचते हैं एक ऑफर तो मेरे पास है, ये तो कहीं जाना नहीं है। एक काम करते हैं, 3 महीने के अंदर दोबारा जॉब ढूंढते हैं, 20% वहां हाइक मिला है, 20 के ऊपर 20 ले लेंगे, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 45% है, कोई बुरा नहीं है। वो आपने ले लिया, फिर आपको जॉब मिल गया और आपको पता है 15 दिन और पड़े हैं, फिर आप एक और हाइक ढूंढने की कोशिश करोगे। ये 80% लोग इसी पीरियड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इमीडिएट जॉइनर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने एक बार ज्वाइन कर लिया तो वहां से फिर 3 महीने में फिर का नोटिस पीरियड शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज मच एज पॉसिबल। बट जब आप उसको बताओगे नए एम्प्लॉयर को कि अब मेरे को नया ऑफर मिल गया, नाउ आई एम डोंट वांट टू कम, वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इन फ्यूचर व्हेनेवर यू अप्लाई, इट विल बी रेड फ्लैग ऑन योर एप्लीकेशन, और वो आपको कभी हायर नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो आपको हायर कर रहा है, हो सकता है कि आपकी नई कंपनी में जिसको आपने टाटा बाय बाय पहले से ही कर दिया, कल को वो आपका क्लाइंट बन के आ जाए, देन हाउ यू फेस दोस पर्टिकुलर पीपल एंड हाउ यू इंटरेक्ट विद दोस। हो सकता है कि आपकी नई कंपनी के लिए नुकसान हो जाए, हो सकता है कि वो बंदा फिर से आपका नई कंपनी में जाके मैनेजर बन जाए, कोई कुछ नहीं जानता। वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल एंड अल्टीमेटली यू विल फेस ए लॉट ऑफ इश्यूज इन द फ्यूचर। तो जो ये जो करते हैं ना, ये जनरली 0 to 10 ईयर वाले करते हैं, 10 to 20 ईयर्स वाले नहीं करते। उनकी स्टेबिलिटी है, वो उनको एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जॉब चाहिए एंड दे वांट बेटर पोजीशन। बट जो जूनियर रोल पे हैं अप टू टीएल लेवल, वो जनरली ये सब चीजें करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या जा रहा है, पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। बट पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से ज्यादा आपका रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट। पैसा बढ़ जाएगा बट होगा क्या? अभी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड के दौरान लोगों ने काफी पैसा कमाया, पहले ले ऑफ हो गया 2020 से 2022, 22 से 23 के बीच में लोगों ने डबल और ट्रिपल सैलरी कर लिया। बट अगर आप उनसे आज पूछोगे 2024 में, दे आर द फर्स्ट वन हु गेट किक्ड आउट फ्रॉम द कंपनी। क्यों? क्योंकि उनका पैकेज ज्यादा है और कंपनी ने सबसे पहले उन्हीं को बाहर निकाला है। तो वो आपका जो 3 गुना पैसा बढ़ गया, वो आपका मार्केट करेक्शंस के कारण अब आप 2 साल तक और हाइक नहीं ले पाओगे या फिर आप निकालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से पैसा आपका निकल जाएगा। तो डोंट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन, फोकस ऑन बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड एड क्रेडिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपने प्रॉमिस किया है आप उसको फुलफिल करो। सो ऑन दैट नोट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स वेरी क्विकली। सो मेरे पास भी ऐसे रिज्यूम्स रिसेंटली आए हैं जिसमें यू वुड सी पीपल आर हॉपिंग देयर जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली टू गेन वेरी हाई हाइक्स। लाइक उनको होता है कि हर 3 महीने बाद हॉप करें और फिर सबसे 30% हाइक, बिकॉज दिस इज द मार्केट स्टैंडर्ड, देन अगेन 30% हाइक, दिस इज द मार्केट स्टैंडर्ड। पिछली कंपनी प्रोजेक्ट एंड हो गया 6 महीने में ही, बट वी आर लुकिंग फॉर हाइक अगेन, क्योंकि वहां से तो मेरे को एंड हो गया तो मेरी गलती नहीं है, बट अब मुझे फिर से 30% हाइक चाहिए अगर मैं आपके यहाँ ज्वाइन करूंगा। सो कैसे, मतलब प्लीज गाइड दीज पीपल, वाई शुड दे एड दिस क्रेडिबिलिटी इन देयर रिज्यूम एंड वाई शुड नॉट दे हॉप दैट फ्रीक्वेंटली अंटिल सच में एक्चुअली, बिकॉज हर बार तो प्रोजेक्ट नहीं एंड हो सकता ना, हर 6 महीने प्रोजेक्ट एंड नहीं हो सकता। सो या मैन प्लीज गाइड दैम।
ओके, सो अगर आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हो ना 1 साल के अंदर, वो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा. लेट मी गिव एग्जांपल हाउ दे कैन चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रोल क्या मेंशन किया. अगर आप सेम ही रोल मेंशन कर रहे हो, फर्स्ट कंपनी में वही था, सेकंड कंपनी में वही था और थर्ड कंपनी में वही है, तो इट्स ए रेड फ्लैग कि आप सिर्फ पैसे के लिए जंप कर रहे हो. अगर आपका लोकेशन चेंज है, देन अल्टीमेटली यू विल हैव एन एक्सक्यूज कि अभी मेरे को इस लोकेशन पे माइग्रेट करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, या सपोज मेरी मैरिज प्लान हो गया ऑल ऑफ ए सडन, या फिर सपोज ड्यू टू सम यू कैन से मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर पेरेंट्स, देन यू वांट टू रीलोकेट टू सम अदर पर्सन, देन इट विल बी जस्टिफाइड. बट अगर आपका रोल भी चेंज नहीं हो रहा, आपका लोकेशन भी चेंज नहीं हो रहा, then ultimately it will be red flag and nobody will and you're actually working call from you for home and interview. still hopping. Absolutely. तो वर्किंग फ्रॉम होम में तो लोगों को एक मौका मिल गया ना कि आप बीच में से आधा घंटा लेके ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो, या फिर आप खुद फिजिकली चले जाओ, कुछ भी करो, देन अल्टीमेटली यू विल गेट द ऑफर. बट वो डिटेक्ट हो जाता है. सेकंड थिंग इज, अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन ले लिया, सपोज आपने बोला कि मार्केट स्टैंडर्ड 30% है, फिर 30% के ऊपर आपको सपोज 25% मिल गया, कंपाउंडिंग आपको 55 मिल गया, तो उससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हो जाएगा. बट लॉन्ग टर्म में सबसे पहले आप ही निकाले जाओगे बाहर, क्योंकि मार्केट करेक्शन आपका हो जाएगा. बट यू विल डू, तो जो आपने 55% हाइक आपने ले लिया, वो 2 साल में रिकवर हो जाएगा. आपके 2 साल सैलरी नहीं बढ़ेगी, या आप सबसे पहले रिस्क पे रहोगे कि निकाले जाओगे, उसका फायदा क्या है? तो डोंट डू दैट. ये आपको शॉर्ट टर्म हेल्प कर देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड रिक्रूटर्स आर एक्चुअली चेकिंग योर हिस्ट्री ऑल्सो, कि आपने पहली जॉब में कितना काम किया, दूसरी जॉब में कितना काम किया, तीसरी जॉब में कितना काम किया. दे एक्चुअली वांट टू सी योर स्टेबिलिटी. अगर आपने किसी ब्रांड के साथ आपने 3 साल की स्टेबिलिटी भी शो नहीं करी है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई लीडरशिप रोल भी देने वाला नहीं है. क्योंकि फॉर लीडरशिप रोल एटलीस्ट यू हैव टू सर्व ए कंपनी फॉर मिनिमम 3 years. ट्रू. तो वो आपको चीज ध्यान रखना. और जो आपको लीडरशिप रोल आपको जितनी जल्दी एक कंपनी में स्टेबिलिटी से मिलेगा, वो आपको हॉप करके तो कभी नहीं मिलने. एब्सोल्युटली, वो कभी नहीं मिलेगा. सो आई थिंक दैट्स आल्सो द पर्क्स फॉर स्टेइंग इन अ कंपनी फॉर लॉन्ग. एब्सोल्युटली. सो या मूविंग बैक टू लिंक्डइन अगेन. सो आप लिंक्डइन लिटरली एकदम से आप घुस के यूज कर रहे हैं 3-4 साल से. सो यू नो लिटरली इन्स एंड आउट्स ऑफ लिंक्डइन, ऑफ ऑल ऑफ इट. सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक लिंक्डइन हर दिन अपना न्यू एल्गोरिथम लेके आता है और कुछ नया हमारे ऊपर थ्रो कर देता है जो एक्टिव यूजर्स है. सो वन इज दैट, और फ्यू थिंग्स दैट यू एज अ यूजर वुड सजेस्ट टू लिंक्डइन कि भाई ऐसे करो, सो दैट वी एज अ यूजर्स वुड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस. ओके, पहले ये समझो कि वो एल्गोरिथम चेंज क्यों कर रहा है. इट इज जस्ट लाइक देयर प्रोडक्ट. जैसे हम कोई प्रोडक्ट अपना कंपनी में बनाते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि इसकी एक फीचर मॉडिफाई कर देते हैं, एक फीचर ऐड ऑन कर देते हैं, पुराना नहीं चला उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं. सेम थिंग लिंक्डइन आल्सो डूइंग. लिंक्डइन इज बेसिकली अ प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट विल हैव मल्टीपल फीचर्स आर देयर. सो वो क्या कर रहा है, वो दे आर एक्चुअली कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इट कि मेरा कौन सा फीचर सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है. Okay. कैसे किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है. दे आर डूइंग द बैकग्राउंड एनालिसिस ऑफ ऑल द फीचर्स, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे विल डिसाइड टू डिसकंटिन्यू, एनहांस, मॉडिफाई और ऐड न्यू फीचर्स. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा यू कैन से घाटा हो गया कि मेरा ये पहले रीच आ रही थी अब नहीं आ रही है. बट उनके एंगल सोचो, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे वांट टू सेल देयर फीचर्स. वो कोई गलती नहीं कर रहे. जब आप बेच रहे हो तो उनका भी राइट है बेचना. वो कोई फ्री आपसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं. इट्स ए प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं. प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं, बट प्रीमियम के अंदर आपको वो एक फैसिलिटीज भी दे रहे हैं. बट अगर आप खाली कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने प्रीमियम पे कर दिया और मेरा कंटेंट का मतलब लैक्स ऑफ इंप्रेशंस आ जाए और मेरे रोज के 500 फॉलोवर बढ़ जाए, दैट दे आर नॉट डूइंग दिस. दे वांट टू एक्चुअली सेल देयर सर्विसेज ऑल्सो. तो वो अपनी जगह पे ठीक है. बट आप क्या करोगे, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पहले कितना वर्क कर रहा था, अब कितना वर्क कर रहा है. क्योंकि वो हर चीज डायनामिक है. आप जो आज चल रही है, वो 10 साल के बाद वो नहीं चलेगी. हो सकता है 3 महीने के बाद वो भी बंद हो जाए. तो आप देखो कि क्या नया चला. अगर कुछ पुराना खराब हो गया, नया भी कुछ चल रहा होगा. जैसे आप देखते होगे वीडियो कंटेंट आजकल वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आप वीडियो कंटेंट डालो. अगर आपको लगता है कि उन्होंने कैराउजल फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, देन पीडीएफ डॉक्यूमेंट डालो. अगर आपको लगता है कि वो इमेज और टेक्स्ट ग्राफिक्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, देन ऐड पिक्चर्स इन योर प्रोफाइल. वो आपका वर्क करेगा. तो जो चीज अगर वो चेंज करी है, नया भी कुछ डाला है, तो नए को आइडेंटिफाई करो, एंड देन यू कैन ऑल्सो अडेप्ट टू देयर एल्गोरिथम एंड स्टार्ट पुटिंग अप द कंटेंट. वो आपको करना पड़ेगा. आपको भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को. यू हैव टू, यू कैन से बिकम एजाइल एंड अपडेट अकॉर्डिंगली. So I think a lot of insights we have got, but the last question is how to choose the right content for LinkedIn and how to make sure whatever we are posting
would actually be beneficial and then probably would get good impression to us? राइट कंटेंट की अपनी एक डेफिनेशन है कि किस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, दूसरा उस कंटेंट से अगर किसी को वैल्यू ऐड हो रही है, और तीसरा आप एक कम्युनिटी या सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। अगर ये तीनों एक चीजें एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, you should continue it. You should love putting up the content, and people will watching you, people will also follow you, and people will engage with you. अगर इन तीनों चीजों में एक भी चीज की कमी आ गई, लोग आपको अनफॉलो कर देंगे and they will never come back on your content. तो आपको वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब अच्छा कंटेंट के कई तरीके हैं। पहला, आपने जो लिखा है वो दूसरे को समझ आना चाहिए। आपने जिस इंटेंशन से लिखा वो उनको क्लियर होना चाहिए। अगर वो भी चीज क्लियर नहीं, अगर आप रैंडमली कुछ भी दे दोगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देंगे। और आज की डेट में अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स है। और जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो 1 by 1, 1 या 2 सेकंड के अंदर कर देते हो, ऐसी इसी तरह से वो हुक है लिंक्डइन का। और हुक भी छोटा सा दिखता है, 2 या 3 लाइन दिखते हैं, उसके पीछे भी केमिस्ट्री है लिंक्डइन की। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई दिल्ली की किसी एक लोकल मार्केट में जाते हो, सपोज करोल बाग में गए आप, वहां पे आप सपोज कुछ परचेज करने गए, सपोज गारमेंट परचेज करने गए। अब वहां पे उनके कबोर्ड में या रैक में बहुत सारे सूट्स या फिर यू कैन से पैकेट में बंद रहते हैं। वहां पे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक है। वहां पे सपोज 150 ड्रेसेस आर देयर इन देयर कबोर्ड। क्या आप उसको ये बोलते कि भैया सारी खोल के दिखाओ? नहीं ना, आप उनको बोलोगे कि 3-4 खोल के दिखाओ। बट कैसे डिसाइड करोगे वो 3-4 आपको खोल के दिखाए? आपको उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में आपको 3 चीजें अट्रैक्ट करती हैं। आपको उसका कलर, आपको उसका डिजाइन और पैटर्न। कलर, डिजाइन और पैटर्न आपकी आईज को अपील करता है, एंड यू इमीडिएटली से टू द शॉपकीपर, भैया ये जरा खोल के दिखाओ। फिर आप खोलते हो उस ड्रेस को, तो आपके सपोज 350 थे, 350 में आपके 347 रिजेक्ट हो गए। 3 आपने खोले। अब जो आपने 3 खोले, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका टच एंड फील लोगे फैब्रिक का। उस 3 में से आपने 2 सेलेक्ट कर लिए, 1 रिजेक्ट कर दिया। ये आपका हो गया सेकंड एलिमिनेशन राउंड। फिर आपने जो 2 आपने सेलेक्ट की है, अगर वो साइज के अप्रोप्रिएट है, देन यू गो टू द ट्राई रूम, वियर इट। और वहां ट्राई रूम के अंदर मिरर भी होगा, अपना आपको मिरर भी एक फीडबैक दे देगा। और उसमें से अगर आपने अपने आप को मिरर में देखा, सपोज आपको 1 पसंद नहीं आया, तो 1 और आपने रिजेक्ट कर दिया थर्ड राउंड में। फिर जिसको आप साथ लेके गए हो, आप उससे फीडबैक लगोगे कि मैं कैसी लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं। इफ दे गिव द पॉजिटिव फीडबैक, देन यू परचेज ओनली 1। तो ये 4 एलिमिनेशन राउंड है एक लोकल शॉप पे। अभी आप कुछ परचेज कर रहे हो, और कितना टाइम आपने लगाया? हार्डली 5 या 10 मिनट लगाए होंगे, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। डिपेंड करता है कि आपने कितने पहले राउंड में शॉर्ट लिस्ट किए। अगर आपने 10 सेलेक्ट कर लिए तो एलिमिनेशन थोड़े कम स्लो स्पीड से रिजेक्ट हो गए। कंटेंट भी ऐसा ही है। जब आपके सामने किसी के फीड में कंटेंट आपका जाता है, ऊपर की 2 या 3 लाइन दिखती है। अगर आपने टेक्सचुअल कंटेंट डाला तो 5 लाइन दिखेंगी, विजुअल डाला है तो आपको 2 लाइन दिखेंगे। जब वो 2 लाइनें दिखी आपको विजुअल के साथ, अगर वो हुक आपको आई कैचिंग नहीं लगा, वो बंदा सी मोर पे क्लिक ही नहीं करेगा, वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। आपको उसके ऊपर सी मोर पे क्लिक करवाना है। तो पहला एलिमिनेशन तो वहीं पे होगा, जिसको हम मास एलिमिनेशन कहते हैं, सी मोर के ऊपर। अगर वो अट्रैक्ट नहीं किया, सी मोर पे नहीं जाएगा। मान लो अगर आपने सी मोर पे क्लिक कर दिया, दूसरा एलिमिनेशन क्या होता है कि आपने जो उसकी बॉडी में लिखा है, क्या वो एक सीक्वेंस में है, क्या वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तभी वो पढ़ेगा, वो नीचे जाएगा। अगर आपने बीच में ही अगर आपने उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी या वैल्यू ऐड नहीं करी, वो नीचे तक जाएगा ही नहीं। और जब वो नीचे जाएगा, और अगर आपका सीटीए मिसिंग है, जिसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि जिसमें वो अपने थॉट शेयर करे या क्वेश्चन पूछे या फिर अपना इनसाइट शेयर करे, अगर वो भी नहीं है तो वो आपके ऊपर वो लाइक कमेंट करेगा नहीं। और अगर जब तक लाइक कमेंट नहीं होगा, आपका वो एल्गोरिथम पिक नहीं करेगा। तो आपके भी यहाँ पे कई एलिमिनेशन है, और आपको उसी एंगल से आपको कंटेंट डालना पड़ेगा कि लोग मेरा कंटेंट क्यों पढ़ें, लोग वो मेरे पास दोबारा क्यों आए, और अगर दोबारा आए तो किस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं। अल्टीमेटली यू कैन इंप्रूव योर कंटेंट, दैट इज कॉल्ड एज गुड कंटेंट। तो आपको एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कीप ट्रैक योर एनालिटिक्स कि पहले कितने इंप्रेशंस थे, वीक ऑन वीक बेसिस में क्या चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली इट विल ऐड वैल्यू, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू बिकम ए सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। Okay. So the last thing, that you have invested so much time over LinkedIn and then created a huge community for yourself. So do you take it as a responsibility कि अब मुझे इनको engage करके रखना है, and then how do you make sure कि
आप जो कंटेंट डाल रहे हैं वो एकदम राइट नीश पे जा रहा है एंड योर फॉलोअर्स आर एंजॉयिंग इट एक्चुअली? पहले आपको ये चीज समझनी है कि सेम फॉलोवर लंबे टाइम तक आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि जो आया है वो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। वो उसका कोई गोल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब लेना है, इंटर्नशिप लेना है, या कुछ थोड़ा बहुत नया सीखना है। जब उसका गोल पूरा हो जाएगा वो बंदा नहीं आएगा। पहले तो आपको ये चीज समझनी है। लेकिन अगर आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो नए लोग भी तो आ रहे हैं, पुराने छूटते जा रहे हैं, नए भी तो आ रहे हैं। तो नए लोगों को आपको अट्रैक्ट करके आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। बट कैसे आप बार बार बुलाओगे? व्हेन दे आर राइटिंग कमेंट, आप उनके कमेंट का ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जवाब दो। इफ दे आर राइटिंग टू योर पर्सनलाइज्ड डीएम, reply that, or try to host meetup also, try to arrange a community event, call those people personally जो आपके कंटेंट पे सबसे ज्यादा एंगेज करते हैं। this will actually create a bonding, this will create a engagement and ultimately that meaningful connections will be lifelong for you। तो वो एक आप तरीका कर सकते हो, बट आप किसी को फोर्सफुली बुला नहीं सकते, क्योंकि नहीं मेरे कंटेंट पे डेली आपको एंगेज करना, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। बट अंटिल अनलेस इफ यू एड वैल्यू दैट क्रिएट इम्पैक्ट इन देयर लाइफ, दे विल डेफिनेटली कम बैक। आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो बार बार आएंगे। सो गाइज, इन शॉर्ट, सिर्फ पोस्ट करने से आप टॉप वॉइस नहीं बन सकते हो। यू विल हैव टू एंगेज, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर फॉलोअर्स आर हैप्पी, यू विल हैव टू मेक श्योर यू आर कमेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल हु आर एक्चुअली commenting on your post, and then you are actually replying to the DMs। ऐसा नहीं है कोई आपको continuously कुछ पूछ रहे हैं and then you are just ignoring them and just कि मैं तो अपने aura में हूँ, I'm the top voice, so why should I respond? And yes, staying down to earth is something that we all should consider, right? Absolutely. So yeah, if you want to add any last notes. One last note is that don't get disheartened कि मैंने कंटेंट डाला, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कमेंट नहीं किया। फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि इनिशियली आपको एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट, यू हैव टू पुट एटलीस्ट 5 times in a week। कोई भी एक अपना टाइम चूज कर लो, मॉर्निंग में जब आप अवेलेबल हो या इवनिंग में जब आप अवेलेबल हो, एंड बिकम कंसिस्टेंट। सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स यू हैव टू इंप्रूव। ये दो आपने अगर हैक्स आपने अपना लिए, स्लोली आपके पास लोग अट्रैक्ट होने लग जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट गुड एंगेजमेंट। तो इसमें हो सकता है प्रोसेस में आपका 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, बट आपने हार नहीं माननी। अगर आपने गिव अप कर दिया, देन दिस प्लेटफॉर्म विल नेवर यू कैन से अलाउ यू टू कम बैक अगेन। सो वो चीज मत करना। So guys, never give up attitude. You'll have to keep up and then keep following Priyank. He is an amazing contributor for LinkedIn. I myself have been following him for quite some time, and then every post that he has been posting is meaningful, and then sometimes it would be humorous also. Like we discussed one about notice period thing. So yeah, he will keep you happy, contented, and then he'll make sure that आपको जॉब भी मिलेगी, he'll guide you, and then he's also starting a new program, if you want to mention that. Yeah, it is about the coaching program which actually help the mid-career professionals to grow in their career, and most important is it will also help you to change the job, or if you want to do any kind of side hustle while working for a job, that will actually add value. Right, and also on Pitch and Hire, if you're a job seeker, you can definitely get the job over here. You'll get once you are enrolled in here, you'll get the notifications that yes, this is a job matching profile, and also you can create ATS resumes for free, and also you can do one more thing, that you can do mock assessments there. So yeah, sign up for the programs. We both are available over LinkedIn to mentor you, to guide you if you need any help. So keep subscribing our YouTube channel for more such insights, and if you have liked amazing insights of Priyank, then please do give a thumbs up, leave your comments, whatever you have felt about this podcast. And if you want to meet him again, you will have to share a lot of love and keep subscribing, so that we can again invite him after a few months whenever he is free again, because I think this session was amazing and we have got to know lots and lots of LinkedIn hacks that I myself is going to implement on my LinkedIn. Till then, take care and bye-bye. Thank you so much, Vanya.